सजा, म्यांमार में सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हुई सजा। खेल की दुनिया में भारत के लिए बड़ा दिन। भारत ने जीता मुंबई टेस्ट, न्यूजीलैंड को 372 रन से हराया। जीत के साथ ही आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत पहली पायदान पर पहुंचा। और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में देश आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दे रहा है श्रद्धांजलि। संसद परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। बाबा साहेब को नमन करने के लिए देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज होने जा रहे भारत रूस शिखर सम्मेलन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वार्षिक शिखर बैठक में शामिल होंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर सम्मेलन आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी उपलब्ध कराएगा। और अब बात भारत और रूस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। भारत और रूस के बीच पहली 2+2 वार्ता आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्षों रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। We are meeting at a critical juncture in the global geopolitical environment, which is in great flux, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic. As close friends and strategic partners, India and Russia have been working together to safeguard our common interests and to ensure peace, progress, and prosperity for our peoples. Our ties have been close and time-tested. In a world that has changed so much, they have been exceptionally steady. We have had an active dialogue at political levels and also a strong defense partnership over many years. Our meeting gives us a suitable platform to discuss politico-military issues of mutual interest that are interrelated and cross-cutting. Our discussions today will address the emergence of multipolarity and rebalancing. We look too at the consequences of over-centralized globalization. The COVID-19 pandemic has raised questions about the current model of global affairs, but the long-standing challenges remain even as new ones emerge. Prominent among them are terrorism, violent extremism, and radicalization. The situation in Afghanistan has wider repercussions, including for Central Asia. West Asia or the Middle East continues to present hotspots. Maritime security and safety is another domain of shared concern. We both have a common interest in ASEAN centrality and ASEAN-driven platforms. All in all, there is much to discuss today. I look forward to an open exchange of views that would further strengthen our special and privileged strategic partnership. Thank you, and I would invite Minister Lavrov to make his opening remarks. रूस के विदेश मंत्री ने भारत के साथ अपने देश की साझेदारी के महत्व का उल्लेख किया। Has been endorsed by Prime Minister Modi and President Putin. I'm confident that the new mechanism is going to turn into an efficient dialogue platform to talk about a wide range of regional and international topics. It'll further deepen our traditional mutual understanding. It'll help reinforce our specially privileged strategic partnership between our countries. Both Russia and India have a similar worldview
of a more polycentric, more multipolar, more equitable world order. We advocate similar or identical positions on the most important political and military issues. We speak in favor of international law, reinforcing the collective principle of international affairs. We adhere to the principle of non-interference in the domestic affairs of other countries, and we have great respect for cultural and civilizational diversity of our world. This creates a very good platform for productive work in the framework of the new mechanism of the Russian-Indian dialogue that is being launched today, and I would like to join my colleague in thanking our Indian hosts for their warm hospitality and for organizing our work. Thank you. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी का जिक्र किया। The pandemic, the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood, and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. India seeks partners who are sensitive and responsive to India's expectations and requirements. Excellencies, I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने वार्ता की, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सहयोग भारत रूस साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये साझेदारी पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगी। Defense cooperation is one of the most important pillars of our partnership. India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation is a well-established mechanism since last 2 decades. It provides a platform to discuss and implement mutually agreed agenda for defense cooperation. We appreciate Russia's strong support for India. Our close cooperation is not targeted against another country. We hope that our cooperation will bring peace and prosperity to the entire region and provide stability to the region. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच साझेदारी अनूठी है। For us, the annual summit, of course, is a very unique event. Prime Minister Modi and President Putin share a relationship of great trust and confidence. They will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. Our partnership is indeed very special. It's very unique. We are very conscious that in a world of rapid geopolitical changes, it has in fact been remarkably steady and strong. And I would also like to take the opportunity to underline that we are very satisfied with our bilateral relations and the state of our cooperation. वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने S-400 मिसाइल सिस्टम सौदे को महत्वपूर्ण बताया है। Well, S-400 deal doesn't have only symbolic meaning. It has very important practical meaning for Indian defense capability. And the situation is basically underway.
the deal is being implemented. और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। नागालैंड मामले में आज गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि यह गलत पहचान का मामला है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने आदेश दे दिए हैं। एसआईटी का गठन हुआ है जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। साजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा किया। हंगामा होते रहने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के हंगामे की आलोचना की। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और ये जो दृश्य अभी हम सबके सामने है ये वास्तव में इनकी मंशा दिखाता है। क्या इन माननीय सांसदों को जो हादसे इस सदन में चेयर के साथ हुए, टेबल ऑफिस के साथ हुए, पूरे सदन का जो अवमानना हुई, जिस प्रकार से डिग्निटी हमारे लेडी मार्शल्स को अटैक करके किया गया कुछ सांसदों द्वारा, मैं समझता हूँ ये सभी माननीय सांसदों ने माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। The Ujjwala 2 scheme, sir, which the honourable member has referred to, 1 crore additional connections were provided in the month of August, and I can tell you within a few months, out of the 1 crore connections, we have already granted about 80 lakhs, and more requests are coming in. Sir, this is an open scheme which evolves as we go along. I want to assure the honourable member who has raised this question on Meerut that whether it's in the rural district of Meerut or any other part of the country, we will be catering to all within the Ujjwala 2. और महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रायगढ़ किले में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रसिद्ध किले पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। राष्ट्रपति के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सांसद संभाजी राजे भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने किले में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और 2 किताबों का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि रायगढ़ किले पर आना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। सेना का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते मैं गर्व का अनुभव करता हूं कि हमारी सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी अपनी प्रेरणा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करती है। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी की सोच भविष्य उन्मुखी थी। उन्होंने 8 मंत्रियों के अपने मंत्रिपरिषद, जिसे अष्टप्रधान भी कहा जाता था, के सहयोग से अनेक दूरगामी प्रभाव के निर्णय लिए। भारत की पहली आधुनिक नौसेना का निर्माण छत्रपति शिवाजी ने ही किया। संयोग से विगत 4 दिसंबर को हमने नौसेना दिवस मनाया और आगामी 8 दिसंबर यानी परसों ही मुंबई में मुझे नौसेना के एक समारोह में भाग लेना है। नौसेना में कार्यरत हमारे आज के नौसैनिक और अधिकारी गण भी शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हैं।
और केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान यूनियन के नेताओं से आग्रह किया है कि वे अब वापस अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने कहा कि देश की जनता परेशान हो रही है, 1 साल से सड़क और रास्ते बंद हैं। किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि कानून वापसी, घर वापसी। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा दिल करके और संसद के अंदर कानून पास हो गए, तो अब किसान यूनियन के नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो घर लौटें, क्योंकि देश की जनता है वो परेशान हो रही है। 1 साल से सड़क और रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से आवागमन में उनको परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि कानून वापस हो गए तो अब घर लौटें। कुछ किसान यूनियन के नेताओं ने, जैसा कि जानकारी मिली है कि उन्होंने निर्णय लिया भी है, कुछ जल्दी मुझे लगता है कि रास्ता जल्दी इसका निकलेगा। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की जमानत को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनआईए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द मामले की सुनवाई का आग्रह किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हाई कोर्ट को बेल दिए जाने का आदेश 8 दिसंबर से लागू होगा। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल दी थी, जिसके खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और भाजपा की देश हित की नीतियों और सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा से प्रभावित होकर देश के कई हिस्सों से दूसरी पार्टी के नेताओं का लगातार भाजपा में आने का क्रम जारी है। आज नई दिल्ली में तेलंगाना कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष CH विट्ठल अपने कई साथियों के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में भाजपा में सम्मिलित हुए। इस दौरान भाजपा महासचिव तरुण चुग और भाजपा नेता अनिल बलूनी भी मौजूद थे। CH विट्ठल के भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज जो है वो देश के लोग डेमोक्रेसी का और भारतीय जनता पार्टी का हाथ और साथ ले रहे हैं। उसका एक ही प्रमुख कारण है कि आज देश जो है वो 2 सियासी खानों में बटा हुआ है। एक तरफ डायनेस्टी पर विश्वास करने वाली पार्टी और एक तरफ डेमोक्रेसी पे विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं विट्ठल जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेंशन है हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर इलाके में, उसमें आपका ये सहयोग और आपका पार्टी में आना महत्वपूर्ण सहयोग अदा करे। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक सेवा के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पदक अलंकरण समारोह आयोजित किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उत्कृष्ट सेवा के लिए महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक के जवानों को पुरस्कृत किया। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक सेवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक विभाग के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पदक अलंकरण समारोह को आयोजित किया। कुल 59 पदक दिए गए, जिनमें से राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2020 के लिए, 14 अग्निशमन कर्मियों और अग्निशमन सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2020 के लिए 41 अग्निशमन कर्मियों को दिए गए, जबकि 4 पुरस्कार नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षकों को दिए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इन जवानों ने नागरिक सुरक्षा और देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाढ़ में जान बचाना हो या दहकती हुई अग्नि में खुद को झोंकना हो, अग्निशमन कर्मियों सहित नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षकों ने हर लिहाज से अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा है। बाढ़ में पानी में डूबते हुए लोगों की जान बचाना, आग में लपटों के बीच जाकर बिना अपने जान की परवाह किए हुए अग्निकांड में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपने जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार होकर काम करना, चाहे वह अन्य प्रकार की आपदा हो, किसी भी प्रकार की, उसमें आपकी बहादुरी के कारण जो जानें बचती हैं, या फिर तूफान के समय भी आप पहाड़ की तरह अडिग होकर बिना विचलित हुए, बिना पांव पीछे किए हुए, सीना तान कर अपने जान की बाजी लगाकर जो काम करते हैं, आज के दिन मैं
उन सभी को नमन करने के लिए यहाँ आया। उन्होंने कहा कि वीर जवानों के अविस्मरणीय योगदान की गाथा को संकलित करें ताकि भविष्य के युवा उनसे सीख ले सकें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को आपदा प्रबंधन की सीख देना भी हमारा ही दायित्व है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शोध को भी उन्होंने जरूरी बताया। आप सबों की वीर गाथा सुनते सुनते मेरे मन में एक बात आई कि ऐसे बलिदानियों का या ऐसे पुरुषार्थी साहसियों का या तो जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए या अपनी जान की परवाह किए हुए लोगों की जान बचाई, जो इस दुनिया में नहीं भी है और जो इस दुनिया में है भी, उन सब की वीर गाथाओं को संकलित करना शायद हम सबों का कर्तव्य है। कोविड महामारी के दौरान नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षकों ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है। स्वयं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उनके इस सेवा भाव की तारीफ की। कई ऐसे उदाहरण हैं जब महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक के जवानों ने अपनी भूमिका को निभाया है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आज पूरा देश बाबा साहेब को नमन कर रहा है। और संसद भवन परिसर में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम गणमान्यों ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। और म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सू की पर चल रहे मुकदमों में से यह पहला मामला है जिसमें सजा की घोषणा हुई है। अदालत ने उन्हें कोरोना नियमों को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने का दोषी करार दिया है। याद रहे कि आंग सान सू की को फरवरी में एक फौजी तख्तापलट के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था और वे तभी से सैन्य हिरासत में हैं। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रन से हरा दिया है। भारत द्वारा दिए गए 540 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 167 रन पर ढेर हो गई। मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 140 रन से आगे खेलना शुरू किया। बाकी के 5 विकेट लेने में भारतीय टीम को ज्यादा दिक्कत नहीं आई और केवल 11.3 ओवर के खेल में भारत ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को समेट दिया। मयंक अग्रवाल को प्लेयर ऑफ द मैच और आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को इस जीत के साथ 12 अंक मिले। ये रन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की ये पहली टेस्ट जीत है। और जूडो का उन्नति शर्मा ने एक बार फिर से लेबनान में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाकर देहरादून, उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन किया है। उन्नति शर्मा जूडो में पहले भी कई पदक जीत चुकी हैं। 2018 में एशियन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।